Hello guys, welcome to all. Today in this session, I will teach you about unit number 5th. We will take the topic frequency distribution. So what is frequency distribution? Basically, if we have been given a large volume of data, then summarizing that data or putting the data in a meaningful manner so that a meaningful output comes, then it will be called as frequency distribution. As you can see here, frequency distribution is a table that displays the frequency of various outcomes in a sample. Each entry in the table contains the frequency or count of the occurrences of the values within a particular group or interval. So, to understand the frequency distribution in detail, let us suppose there are marks of 50 students out of 20 in the science subject. So let's suppose that first student got the 3 number, then the second student got the 1 number out of 20, then the third student got 2 number out of 20, then the fourth student got 5 number out of the 20, then 13, then the fifth student got 13 number out of 20, and in the same way the students are getting marks out of 20, as you can see here. Now our task is to summarize this data, but if the data is given in this format, in which format, let me tell you. If the data is given if the data is given in if the data is given in this format, which I am highlighting here, then it will be called as raw data or ungrouped data. Now to make it the meaningful data, what we will do here, we will summarize this data and we will make a table having one column as marks and other column name as frequency. So marks will denote the different marks of the students which they have got the number. For example, different numbers the students have got are 3, 1, 2, 5, 13, 0, 4, 19, 1, 8, 0, 3, 11, 12. So there are various numbers which the students have got. Now what we will do, we will just write down all the marks which the students have got. For example, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, up to so on and up to 20. Now we will see how many times 0 appears in the raw data. So we will count number of 0. So we find 0 here, then the next 0 here, then the next 0 here, 3 times 0, then the next 0 here, it is 4 times. So we will write 4 in the front of 0. So the number of times the data occurs is called its frequency. Now we will count the number of times the 1 has been occurred in the raw data. So let us count 1. So 1 appears here, then it appears here second time, then it appears here third time, and then it is fourth time. And let us recount again. 1,
2, then 3, then 4, then 5. So the total count of 1 is 5. That means how many students have got 1 marks? So the total number of students who have got 1 marks in the class are 5. That means 5 students have got 1 marks in the science subject out of 20 marks. Similarly, we can find how many times the 2 number appears in the raw data, and we will write down the number of occurrences here, and this number of occurrence will be called as frequency. So the number of marks which have been written here will overall be called as variate. That means suppose if marks is treated as x, so I mean to say let us suppose marks is treated as x and frequency is treated as f. So the x here, which is denoting the marks, will be called as variate. I am repeating again, the x will be called as variate, and the 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and all the numbers in the marks column will be called as variate values. So x will be called as variate and 0, 1, 2, 3, 4 will be called as variate values. Similarly, 4 is the frequency for the variate value 0, 5 is the frequency for the variate value 1, 6 is the frequency for the variate value 2, and so on. In this way we can continue. So let us move further. So the number of marks, as you can see here on the screen, the number of marks is called the variate. The number of marks is called the variate, and the values which the variate takes are called the variate values. So 20, 19, 18, 17, 16, all these are variate values. The number of times a particular variate value occurs in a set of observation is called the frequency. So here 0 is the variate value, 4 is the frequency of that variate value, 1 is the variate value and 5 is the frequency of that variate value, 2 is the variate value and 6 is the frequency, 3 is the variate value, 4 is the frequency, 4 is the variate value, 6 is the frequency, 5 is the variate value, 4 is the frequency. So in this way we can define easily what are the variate values and what are the frequency. Now let us suppose another example. Let's say we have 50 candidates and we have divided it in the groups. The number of marks here, as you can see, it is raw data. All these are raw data of the 50 students in the science subjects. They have got out of 20, and here is the tabulation of that raw data. But in this tabulation we can see in the marks column there is a single marks, and in that in the front of that it is written how many times that marks has come in the raw data. Now what we will do the grouping. That means we will find out
how many students are there in the class who have marks between 0 and 5? That means including 0 but less than 5. So the number of candidates which have marks between 0 and 5 in the above raw data is 25. You can count from your side, it is 25. For example, if you, how many students have got less than 5 marks? For that, what we will do, you will find out how many students have got 0 marks. They are 4. How many students have got 1 marks? They are 5. How many students have got 2 marks? They are 6. Then how many students have got 4 marks? Have got 3 marks? They are 4. And how many students have got 4 marks? Because we are considering less than 5. So the 4 marks appears for 6 students. So we will sum up all these numbers. That means 4 students, 5 students, 6 students, 4 students, and 6 students. The sum of all these numbers will definitely be 25. So we can easily write down here that all the students have got marks between 0 to 5 in the class. Their count is 25. That means there are 25 students who have got the marks between 0 and 5. Now, how many students are there who have got marks between 5 to 10? That means including 5 but less than 10. So we can easily find out from the table here, including 5 but less than 10. So 5 marks are awarded to 4 students, 6 marks have been awarded to 2 students, 7 marks to 0 students, and 8 marks to 1 student, and 9 marks to 0 students. So when we will sum all these, we will get 0 plus 1 plus 0 plus 2. So 3, and 3 plus 4, 7. So you can easily find out here that the number of students who have got marks between 5 to 10 is 7. You can find out here, it is written here. So and you can see my cursor pointer in the red color, it is 7. Now, how many students are there who have got marks between 10 to 15? That means including 10 and less than 15. So again, we will follow the same strategy. We will look up in this table, or we can also look up at the raw data, and then we will count the sum of those students who have got marks less than uh, greater than, including 10 but less than 15. So including 10, we will start from 10. So 10 numbers have been achieved by 0 students, 11 marks have been achieved by 1 student, 12 marks have been achieved by 2 students, 13 marks have been achieved by 4 students, and 14 marks have been achieved by 3 students. So when we will count all these numbers, we will get 3 plus 4, 7, 7 plus 2, 9, and 9 plus 1, 10, 10 plus 0, 10. So we can easily find out that the students who have got marks between 10 to 15, their counting is 10 in the class. That means 10 students have got marks between 10 to 15. Similarly, we can find out easily in the same way that how many students are there who have got marks between 15 to 20. Their counting will be 8. Now, if we sum all these frequencies, that means if we sum all these frequencies, then we will get the value as 50. That means all the students who are there in the class who have got different marks between different range, their counting is 50. Now what is cumulative frequency? Here the third column is cumulative frequency. You can see my pointer in the red color. Here it is written cumulative frequency. Now what is cumulative frequency? Basically, cumulative frequency is find out in the following manner.
How many students have got marks between 0 to 5? It is 25. So this value will remain same for the cumulative frequency also. Now how many students are there who have got marks between 5 to 10? For this the cumulative frequency will be 32. How it is 32? It will add the data 25 and 7. So 25 plus 7 will be equal to 32. Then in the third row, we will add the previous data, that is 25 plus 7 is equal to 32. 32 plus 10 will be 42 and it will be written here. Then 42 plus 8, which will be equal to 50, and it will be written here. The important point to consider here is that the last value of the cumulative frequency column will be same as the total of the frequency column. That means what? If we sum all the numbers in the frequency column, then the sum of those columns, sum of that column will be same as the last value of the cumulative frequency column. It is very important point to note. So now we will consider some definitions. So from the following table, it will be seen that all the 50 observations have been divided into 4 classes. Here you can see there are 4 classes. The first class represents 0 to 5. The second class represents 5 to 10. The third class represents 10 to 15, and the fourth class represents 15 to 20. So there are 4 classes. The first value in the class, that means 0, is called the lower limit of the class, and 5 is called the upper limit of the class. Similarly, for the class 5 to 10, 5 will be the lower limit and 10 will be the upper limit. For the class 10 to 15, 10 will be the lower limit and 15 will be the upper limit. And for class 15 to 20, 15 will be the lower limit and 20 will be the upper limit. Now, the next point is, what is width? So the width will be the difference of the class, the difference between the upper limit and the lower limit. So for the class 0 to 5, 5 will be the width. How the 5 comes? Because upper limit minus lower limit formula gives 5 minus 0 and we will get 5. Similarly here we can find out the width of the class 5 to 10. What will be the width of this class? The pointer which I am here representing here in the red color, what will be the width of this class? So we can easily find out the width of this class by subtracting the upper limit from the subtracting the lower limit from the upper limit. So 10 minus 5 will be equal to 5. So the width of this class will be same as of the previous class, that means 5. Similarly, the width of this class will also be 5 because 15 minus 10 will be 5, and the width of this class 15 to 20 will also be 5 because 20 minus 15 is equal to 5. So I told you the concept of width. Then there is another concept called as mid value. Mid value, what is the mid value of 0 to 5 class? The mid value will be 2.5. What is the mid value for 5 to 10 class? The class represented here as 5 to 10, what will be the mid value for that? It will be 7.5. Then what will be the mid value for 10 to 15? It will be 12.5. And what will be the mid value for the class 15 to 20? It will be 17.5. So this is the concept of mid value. So I told you various concepts here. Now you can see on the screen that we are going to learn a new topic
that is graphical representation of frequency distribution. So what you have seen just here is that you have seen that the raw data, this raw data which I am highlighting in the red color, was represented in the tabular format. Now it can also be represented in the graphical format. That means by means of graph. So the above data which have been represented here in the tabular format can also be represented by the means of graph. So the graph of the frequency distribution are of three types. The first one is histogram. The first type is called as histogram. The second type is frequency polygon and frequency curve. And the third type is cumulative frequency curve, or also called as OGI. Now we will see what is histogram, how the histogram graph is created. So for that, let us consider the following data. This data which I am highlighting by the pointer. So there are two columns. One is height in inches and the second one is number of boys. So how many boys are there who have height between 48 to 50? So there are 12 boys who have heights between 48 to 50. How many boys are there who have heights have between 50 to 54? कितने बच्चों की हाइट 50 से 54 के बीच में है? तो उनकी संख्या 60 है. Their now counting is 60. कितने बच्चों की हाइट 54 से 56 के बीच में है? उनकी काउंटिंग 20 है. कितने बच्चों की हाइट 56 से 58 के बीच में? उनकी काउंटिंग 16 दी गई है. इसी तरीके से 58 टू 59 वाले हाइट की काउंटिंग जो है वो 5 है. 59 टू 60 की 2 है और 60 टू 63 वाली जो हाइट के बच्चे हैं उनकी काउंटिंग, माना कि किसी क्लास में जो बच्चे हैं वो 3 बच्चे हैं. तो एक चीज यहाँ पर आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऊपर जो हमने क्लास इंटरवल लिया था, यहाँ पर रेड कलर से आप पॉइंटर में हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्लासेस थे वो इक्वल इंटरवल्स के थे. इक्वल इंटरवल्स मींस अगर आप 0 to 5 की बात करें तो कितना डिफरेंस है? 5 का. 5 से 10 की बात करें तो 5 का डिफरेंस है. 10 to 15 देन अगेन द डिफरेंस ऑफ 5 एंड 15 to 20 अगेन द डिफरेंस ऑफ 5. सो दीज क्लासेस आर ऑफ इक्वल इंटरवल. इक्वल इंटरवल का मतलब कि जितनी भी क्लासेस यहाँ पर दी गई हैं वो सब में जो इंटरवल है वो इक्वल है. तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखिए इस जगह पर जो हाइट का कॉलम है इसमें सभी डेटा इक्वल नहीं है. मतलब जो क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस इक्वल नहीं है. पहली क्लास में डिफरेंस 2 का है, दूसरी क्लास 50 टू 54 में डिफरेंस 4 का है, देन 54 से 56 में 2 का डिफरेंस है, देन 56 से 58 2 का डिफरेंस है, 58 टू 59 1 का डिफरेंस है, 59 टू 60 में 1 का डिफरेंस है और 60 टू 63 में 3 का डिफरेंस है. तो यहाँ पर जो टेबल हमें बना के दी गई है उस टेबल में हमें ये बताया गया है कि भाई कितने बच्चे हैं जो इतनी इतनी हाइट के क्लास में एग्जिस्ट करते हैं. तो 12 बच्चे हैं जिनकी हाइट 48 से 50 के बीच में है. 60 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 50 से 54 के बीच में है. 20 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 54 से 56 के बीच में है. इस तरीके से हमें डेटा दिया गया है. ये डेटा आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया जा सकता है और बोला जा सकता है कि एक हिस्टोग्राम बनाइए. तो अब आपको इस डेटा को ध्यान में रखते हुए हिस्टोग्राम बनाना है. तो हिस्टोग्राम कैसे बनाएं? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हाइट का कॉलम है इसको एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल here you can see 48 50 54 56 58 59 60 63
all these values will be written on the x-axis of the graph, and the frequency 12, 60, 20, 16, 5, 2, 3, all these will be written on the y-axis of the graph. Now how to draw the histogram? हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने की क्या टेक्निक है? तो आपको यहां पर एक टेक्निक अडॉप्ट करनी पड़ेगी। टेक्निक से मेरा मतलब है कि जो यहां पर 48 से 50 का इंटरवल है, वो किस हाइट पर वाई एक्सिस को कट करेगा, यह हमें पॉइंट्स कहां पे प्लॉट करने हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 48 से 50 के बीच का जो इंटरवल है या जो विड्थ है वो कितना है यहाँ पर। तो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं, 48 to 50 कितना इंटरवल है, 2 का। हम क्या करेंगे, 12 जो कि फ्रीक्वेंसी है, 12 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6। हम फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को, मतलब जो वैल्यू फ्रीक्वेंसी में दी गई होगी क्लास के सामने, उसमें से जो विड्थ होगा क्लास का, विड्थ कैसे निकालते हैं क्लास का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 50 में से 48 को माइनस कर दिया तो विड्थ निकल जाएगी। तो 50 माइनस 48 इज इक्वल टू 2, so we will divide 12 by 2 and whatever the value we will get, we will plot the point at there. What I am saying, this will only be applicable for the histogram only. मतलब जो भी मैं कह रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट हिस्टोग्राम पर अप्लाई होगा, बाकी और कहीं भी किसी भी टॉपिक में अप्लाई नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट। तो क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या करना है कि जो क्लास का विड्थ है, मतलब 48 से 50 के बीच का जो विड्थ है, मतलब 50 माइनस 48 इज इक्वल टू 2, उस विड्थ को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है। तो यहां पर आपने डिवाइड कर दिया 12 बाई 2 विच इज इक्वल टू 6। यही काम सभी पॉइंट्स के लिए करना है। तो यहां पर 50 से 54 वाली जो क्लास है उसके लिए 50 से 54 वाली जो क्लास है उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो है 60। You can easily see there that in the front of 50 to 54 class the frequency is 60. So what will be the value for our graph? So we will divide 60 by 4. 4 कहां से आया, 4 has been obtained by subtracting the upper limit minus lower limit. मतलब 54 में से 50 माइनस किया तो जो डिफरेंस होगा वो कहलाए आपका होगा 4, और हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को उस डिफरेंस से डिवाइड करेंगे और जो यहाँ पर आएगा वो कहलाए वो होगा 15। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि 54 पॉइंट पर, मतलब एक्स एक्सिस पर जब 54 होगा तो उस वाले पॉइंट पर वाई एक्सिस पर जो पॉइंट वाई एक्सिस पर प्लॉट होगा वो उसकी वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू होगी 15। 50 पर 6 वैल्यू होगी, 54 पर 15 वैल्यू होगी। मतलब जब x एक्सिस पर 50 की वैल्यू पर y की क्या वैल्यू होगी, वो 6 होगी। इसी तरीके से x एक्सिस पर जहां पर 54 होगा उस पर y की क्या वैल्यू होगी, 15। इसी तरीके से हम नेक्स्ट निकाल सकते हैं 56, x एक्सिस की 56 की वैल्यू पर y की क्या वैल्यू होगी,
it will be 20 divided by 2. Why 2? Because 56 minus 54 is equal to 2. So 20 divided by 2 is equal to 10. So 56 की वैल्यू पर y की वैल्यू 10 होगी, मतलब x की वैल्यू 56 पर y की वैल्यू 10 होगी, x की वैल्यू 58 पर y की वैल्यू 8 होगी, x की वैल्यू 59 पर y की वैल्यू 5 ही रहेगी। 5 क्यों रहेगी? Because 59 minus 58 is equal to 1. So I am using highlighter here. 58 minus 59, the difference will be 1. It will be divided by 5. So it will come as 5. So 59 x एक्सिस पर जहां पर 59 होगा वहां पर y की वैल्यू 5 ही रहेगी, और x एक्सिस पर जहां पर 60 होगा वहां पर y की वैल्यू 2 होगी, और जहां पर 63 होगा वहां पर y की वैल्यू 1 होगी। 1 क्यों? Because 63 minus 60 is equal to 3 and 3 divided by 3 is equal to 1. So 63 की x एक्सिस पर वैल्यू पर y की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो आप यहाँ पर ग्राफ में इजीली देख सकते हैं। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। सो यहाँ ग्राफ पर आप इजीली देख सकते हैं 50 पॉइंट पर जो y गया है वो 6 तक गया है, और हमें एक रेक्टेंगल बनाना है यहाँ पर, मतलब एक बार बनाना है। तो बार चार्ट की तरह हमें यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक रेक्टेंगल का शेप देंगे। अब यहाँ पर जो 50 पर 6 पॉइंट आएगा उसको x एक्सिस से मिला देंगे। देन 54 पर 15 आएगा तो उसको प्रीवियस जो लाइन है उससे टच करा देंगे, मतलब रेक्टेंगल बना देंगे। देन 56 पर आप यहाँ पर देख सकते हैं 56 पर जो है वो 10 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 56 पर 10 पर जाकर के रुक गया अपना पॉइंट। तो ये 10 के सामने, बिल्कुल ठीक सामने 10 के यहाँ पर 56 का पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, और इसको रेक्टेंगल का शेप दिया गया है, मतलब पिछली वाली लाइन से टच कर दीजिए, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। इसी तरीके से 58 पर कितनी वैल्यू आएगी 58 पर? तो 16 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 8। वाई 2? बिकॉज 58 माइनस 56 इज इक्वल टू 2। तो 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो 58 पर 8, तो 58 पर 8 देख लीजिए यहाँ पर 58 मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर से। 58 पर 8, तो ये रहा 8, ये पॉइंट 8 पर जाता है यहाँ पर, तो ये रहा 8। इसको हम पिछली वाली लाइन से टच कर देंगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। इसी तरीके से 59 पर, देन 60 पर, देन 63 पर हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा जो ग्राफ बना है दिस विल बी कॉल्ड एज हिस्टोग्राम। तो यहाँ पर जो मैंने टेक्निक बताई कि फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है क्लास इंटरवल से, मतलब जो डिफरेंस होता है क्लास का उससे डिवाइड करके और फिर जो वैल्यू आएगी उस पे पॉइंट को प्लॉट करना है, ये कॉन्सेप्ट केवल और केवल हिस्टोग्राम के लिए एप्लीकेबल होगा, बाकी कहीं पर भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो आपने ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है दिस विल ओनली बी अप्लाइड इन द केस ऑफ हिस्टोग्राम। तो एक्स एक्सिस कौन सी होती है? एक्स एक्सिस होती है जो आपके क्लास होती है, और वाई एक्सिस कौन सी होती है? वाई एक्सिस जो फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी को हमेशा हम वाई एक्सिस बनाते हैं और क्लास को हमेशा हम एक्स एक्सिस बनाते हैं। ये चीज आगे भी, ये कॉन्सेप्ट आगे भी चलेगा कि फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस बनाएंगे और क्लास को एक्स एक्सिस बनाएंगे। सो now comes the second point in the graph, the second type of graph, that is frequency polygon and frequency curve. So let us suppose an example. So the first column here is representing wages, that means how much money a worker is getting in the job,
So number of persons who are getting the salary between 80 to 85 are 12, and the number of persons who are getting salary between 85 to 90 are 26, and the number of persons who are getting salary between or who are getting wages between 90 to 95 are 63, and the number of persons who are getting wages between 95 to 100 are 80. Similarly, you can see here that a table is given. Now what we have to do, we have to draw a graph, that is frequency polygon and frequency curve. Both are different graph. So this is the graph. Now I will make you understand. मैं आपको समझाऊंगा कि ये ग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जो इसमें डॉटेड लाइन है, जो डॉट डॉट करके बनाया गया है, जिन पॉइंट्स को डॉट डॉट से जोड़ा गया है, डॉट डॉट करके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखिए रेड रेड कर्सर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, डॉट डॉट से जोड़ा गया है। तो ये जो डॉटेड ग्राफ है, ये डॉटेड ग्राफ कहलाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और जो लाइन बनाई गई है, मतलब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप। ये जो लाइन यहाँ पर बनाई गई, कर्व बनाया गया है, ये जो कर्व बना के सीधे यहाँ से लेते हुए इसको यहाँ इस पॉइंट से जोड़ा गया है, फिर यहाँ से कर्व यहाँ जोड़ा गया है, देन अगेन ये देखिए स्लोप मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये सीधे यहाँ तक आया, देन इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आया, देन इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आया। तो ये वाला जो कर्व है, जो कि लाइन जो कि बनाया गया है बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में, तो ये जो थिक लाइन के फॉर्म में बनाया गया है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। मतलब एक ही ग्राफ में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी होता है और फ्रीक्वेंसी कर्व भी होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही ग्राफ में एग्जिस्ट करते हैं, ये अलग से एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व दोनों एक ही ग्राफ में हमारे पास यहाँ पर होते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट एक ही ग्राफ में हमें यहाँ पर हमारे पास होंगे। सो ग्राफ कैसे बना, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल पर ले चलता हूँ। तो आपको क्या करना है, 80 to 85 जो इंटरवल है, मतलब जो क्लास है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। और उस मिड पॉइंट पर आपको जो यहाँ पर सामने वैल्यू दी गई है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स दिया गया है, इस पर पॉइंट ड्रॉ करना है। मतलब 82.5, 80 to 85 के बीच का पॉइंट कौन सा होगा, 82.5। 82.5 एक्स एक्सिस पर जहां पर 82.5 होगा, वहां पर y की वैल्यू कितनी होगी, 12। मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, देख लीजिए आप। 82.5 पर एक्स एक्सिस की वैल्यू जहां 82.5 होगी, वहां पर y की वैल्यू 12 होगी। इसी तरीके से 87.5 जो नेक्स्ट क्लास है 85 से 90, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो होगा 87.5। 87.5 पर जो y की वैल्यू होगी वो होगी 26। तो आपको मैं ग्राफ में ले चलता हूं और दिखाता हूं 82.5 पर 12 और 87.5 पर 26। यहाँ देखिए 80 से 85 के बीच का जो पॉइंट है, उसमें सीधा सीधा ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये जो पॉइंट मार्क किया हुआ है 12 पर मार्क किया हुआ है, ये पॉइंट आपका 12 को डिनोट कर रहा है। देन 85 से 90 के बीच का जो पॉइंट है वो आपका 26। तो यहाँ पर देखिए आप, ये 85 से 90 के बीच का जो पॉइंट है, मतलब 87.5, इसके ठीक ऊपर हम चलेंगे तो इस पॉइंट को कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 26 पर। तो ये 26 पर ये पॉइंट हमने ड्रॉ किया है। इसी तरीके से हम सभी क्लासेस का मिड पॉइंट लेकर के और उन मिड पॉइंट्स के ऊपर जो हमारे टेबल में वैल्यूज दी गई है, मतलब यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ पर्सन्स दिए गए हैं,
ये हमारी वाई एक्सिस की वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज के ऊपर हम लोग पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। पॉइंट ड्रॉ करने के बाद में हम क्या करेंगे, सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन मतलब डॉटेड लाइन बनाएंगे, लेकिन उसको स्ट्रेट बनाएंगे। तो जैसे ये पॉइंट जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है और दूसरा पॉइंट ये रहा, इसको डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे जो कि डॉटेड शेप में होगा। फिर सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन मतलब एक डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे। फिर थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट को डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे सीधे सीधे। देन फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को जोड़ेंगे, देन फिफ्थ और सिक्स्थ को जोड़ेंगे, देन सिक्स्थ और सेवंथ को जोड़ेंगे, बिल्कुल सीधे सीधे जोड़ेंगे। तो ये जो हमारे पास ग्राफ बन के आएगा इस डॉटेड लाइन की शेप में, जो बिल्कुल सीधे सीधे आप एक स्केल से सीधे सीधे ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब 2 पॉइंट पर स्केल रखी और उस स्केल के बिल्कुल ठीक पैरेलल में आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो डॉटेड लाइन का शेप जो हमें यहाँ पर मिल रहा है, ये डॉटेड लाइन का शेप कहलाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यहाँ रेड कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ नोट्स पर, आप देख लीजिए। डॉटेड लाइन वाला जो शेप होगा, जो कर्व होगा, वो कहलाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और इसी में एक दूसरा कर्व हमने बनाया, कैसे? स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व कैसे बनाया? जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वैसा ही स्मूथनेस लेते हुए हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को एक स्मूथ कर्व बनाने की कोशिश करी है। देन उसके बाद में यहाँ से स्मूथ ड्रॉ किया है। देन थर्ड यहाँ से वापस स्मूथली ड्रॉ करते हुए हमने यहाँ से लेकर के, मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ से लेते हुए हमने ये पॉइंट ऐसे ऐसे यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये इस तरीके से। तो ये जो स्मूथ हैंड फ्री हैंड से ड्राइंग करी हमने, ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी कर्व। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। तो एक ही ग्राफ में हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी होता है और फ्रीक्वेंसी कर्व भी होता है। दोनों एक ही सेट ऑफ डेटा से बनते हैं, और फर्क बस इतना है कि जब दो पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और जब स्मूथ कर्व बना देते हैं तो वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व के। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को डॉटेड लाइन से बनाया गया है और फ्रीक्वेंसी कर्व को थिक लाइन से बनाया गया है। तो किन्हीं दो पॉइंट्स को आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे और जोड़ते जाएंगे अगले नेक्स्ट सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन की तरह से, तो वो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाएगा। और स्मूथ ड्रॉ करेंगे, फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे, तो वो कहलाएगा फ्रीक्वेंसी कर्व। और दोनों एक ही ग्राफ में होते हैं। इसमें एक्स एक्सिस किसको बनाई जाती है? एक्स एक्सिस जो बनाई जाएगी वो होगी क्लास, मतलब यहाँ पर जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इस क्लासेस के अपर लिमिट्स को हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस बनाते हैं। और जो वाई एक्सिस है उसको हम, जो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स है, इसको फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो वाई एक्सिस को हमने यहाँ पर, जो वाई एक्सिस है उसको फ्रीक्वेंसी बनाई है, मतलब फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस बनाया है, सॉरी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये वैल्यूज करस्पॉन्डिंग सिमिलर हैं इन वैल्यूज के नंबर ऑफ पर्सन्स के। इन सभी वैल्यूज को ग्राफ में डिनोट करने के लिए हम लोग वाई एक्सिस यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे। वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ पर्सन्स वाले डेटा को प्लॉट करेंगे, और जो क्लासेस दी गई होती हैं यहाँ पर, जो अपर लिमिट्स हैं, उनको हम ध्यान में रखते हुए एक्स एक्सिस बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस बनाई है। तो इस तरीके से हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व दो ग्राफ बनकर आते हैं, जिसमें पॉलीगन का मतलब स्ट्रेट लाइन से किन्हीं दो पॉइंट्स को जोड़ना है, और कर्व का मतलब स्मूथ ड्रॉ करना है, मतलब फ्री हैंड ड्रॉ करते हुए आपको पॉइंट्स को जोड़ना है। तो फ्री हैंड ड्रॉ करते हुए अगर आप पॉइंट्स को जोड़ेंगे, देन दैट विल बी कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी कर्व। एंड स्ट्रेट लाइन से पॉइंट्स को जोड़ते जाएंगे, then that will be called as frequency polygon. Next, the third topic
The third type of graph is cumulative frequency curve, and it is also called as ogive. So how we can draw this type of curve? How the ogive is drawn? So basically, suppose we have been given the following set of data. So there is a class, you can see my cursor highlighted in red color. There is a class and there is a frequency for that class. So for class 10 to 20, the frequency is 5. For class 20 to 30, the frequency is 7. For class 30 to 40, the frequency is 12. For class 40 to 50, the frequency is 10. And for class 50 to 60, the frequency is 6. Till now, what we were doing is that we were plotting the class interval as x-axis and the frequency as y-axis. But in the case of cumulative frequency curve or ogive, what we will do is that we will also make another column called as cumulative frequency, which I have just told earlier also. Let me explain you again how the cumulative frequency column is works. So we just add the frequencies. So 5 will be written same here as 5. Then in the next column, 5 plus 7, that is 12, that will be written here at the bottom of the 5. Then 5 plus 7 plus 12, that is 24, will be written below the 12. Then 5 plus 7 plus 12 plus 10, that is 34, will be written here. Then 5 plus 7 plus 12 plus 10 plus 6, that is 40, will be written here. So cumulative frequency और frequency में क्या difference होता है? What is the difference between frequency and cumulative frequency? So cumulative frequency are always arranged in sorted order. मतलब cumulative frequency जो है वो हमेशा sorted way में होती है, या तो वो ascending way में होगी या descending way में होगी. तब या तो increasing order में होगी या decreasing order में होगी. जबकि frequency जो है वो किसी भी तरीके से हो सकती है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 के बाद 12 उससे बड़ा नंबर है, 12 के बाद 24 उससे बड़ा नंबर है, 24 के बाद 34 उससे बड़ा नंबर है और 34 के बाद 40 उससे बड़ा नंबर है. तो किसी भी टेबल को देख करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो सिंपल नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा एक ऑर्डर में होगी, शॉर्टेड वे में होगी, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में होगी. बट फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम जो होता है वो किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है. फॉर एग्जांपल हेयर 5 के बाद 7, देन 12, देन अगेन छोटा नंबर 10, देन अगेन छोटा नंबर 6. तो यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है. बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एक ऑर्डर होगा. क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर जो सम होता है, फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है और सम हमेशा इंक्रीज ही होगा. जैसे 5 plus 7 12, then next value will come as 5 plus 7 plus 12, that is 24. Then the next value will come as 5 plus 7 plus 12 plus 10, 34. So in this way we are assured that in the cumulative frequency column all the values will be in the shorted way, either increasing or decreasing, depend upon the situation. So cumulative frequency curve या ओजाइव को कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो है, जो डेटा यहाँ पर दिया गया है क्लास का 10 to 20 का. तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम क्लास को x एक्सिस ले रहे थे और फ्रीक्वेंसी को y एक्सिस ले रहे थे. जब हम ग्राफ प्लॉट करते थे
तो क्लास को एक्स एक्सिस ले रहे थे और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस ले रहे थे। लेकिन ओजाइव के केस में क्या होगा कि क्लासेस को एक्स एक्सिस ही लेंगे, लेकिन वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी की जगह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्लास को एक्स एक्सिस ले रहे थे और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस ले रहे थे और पॉइंट्स ड्रॉ कर रहे थे, और पॉइंट्स को ड्रॉ करने के बाद उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दे रहे थे और हमारे पास एक ग्राफ बन के आ जा रहा था। लेकिन ओजाइव के केस में क्या होगा, मतलब ये जो तीसरा पैटर्न है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव, इसमें हम क्या करेंगे, क्लासेस को तो एक्स एक्सिस लेंगे बट वाई एक्सिस में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो वाई एक्सिस जो होगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की 5, 12, 24, 34, 40, तो मैंने यहाँ पर जो वाई एक्सिस है उसको मैंने डिवाइड कर दिया है अलग अलग पॉइंट्स में, 10, 20, 30, 40, 50, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर जो नीचे एक्स एक्सिस में है 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासेस दी गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से, जो अपर लिमिट है क्लास की, पहली क्लास की अपर लिमिट क्या है 20, उस 20 पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो है 5। तो यहाँ पर 20 पर आप ध्यान से देखिए, 20 पर हमने 5 पर यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ किया है, 20 पर 5। सो एट द वैल्यू ऑफ 20 ऑन एक्स एक्सिस वी हैव अ पॉइंट एट 5 ऑन द वाई एक्सिस। नाउ 30 पर हमने यहाँ पर 30 पर 12, तो 30 पर 12 को यहाँ पर ड्रॉ किया। देखिए 30 जो एक्स एक्सिस पर दिया हुआ है, इस पर हमने पॉइंट ड्रॉ किया है 12 पर। ये पॉइंट 12 तक, 12 को डिनोट कर रहा है, वाई एक्सिस पर 12 को डिनोट कर रहा है। तो 30 पर 12 पॉइंट को ड्रॉ किया है। इसी तरीके से 40 पर, 50 पर सबकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो दी गई है, 40 पर 24, 50 पर 34 और 60 पर 40, हमने यहाँ पर ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वो पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। और जो यहाँ पर 10 to 20 स्टार्ट हो रहा है 10 से, तो हमने 20 से माना, आपको मैंने बताया 20 पर 5 होगा, तो 10 पर क्या होगा, 10 पर 0 होगा। ऑटोमेटिकली इट इज अंडरस्टूड बिकॉज इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो 10 से स्टार्ट हो रहा है तो 10 यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने भी यहाँ 10 से स्टार्ट किया है। स्टार्ट करने का मतलब एक्स एक्सिस की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर 10 पर वाई की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, 20 पर 5 होगी, यहाँ दी गई है 20 पर 5, 30 पर 12, 40 पर 24, 50 पर 34 और 60 पर 40। तो ये जो टॉपिक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ओजाइव, इस टॉपिक में खास बात ये है, एक्स एक्सिस में तो हम क्लासेस ही रखेंगे बट वाई एक्सिस में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखेंगे। मतलब फ्रीक्वेंसी की जगह आपको वाई एक्सिस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना है, ध्यान में रखना है। यहाँ पर यही डिफरेंस है बस। और फिर उसके बाद इन पॉइंट्स को ड्रॉ करने के बाद इनको हम आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद जो हमें कर्व मिलेगा ये कहलाएगा ओजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स का कर्व मैंने आपको समझाया। So this was all in this video. Thank you.